आतंकवाद के खिलाफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटा रहा है। को एक और सफलता मिली है जिसमें उसे अफ्रीकी यूनियन से आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुटता दिखाई। यहां एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल इथियोपिया पहुंचा है। यहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की, साथ ही भारत का रुख बताया। पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फैमिली। We come here as a team of all party, very distinguished members of parliament, my colleagues. They're from various parties. Most of them, for me personally, it's a heavyweight delegation because most of them have served not just as members of parliament, but as important ministers in the government of India, some in very important departments which have influenced policy for various decades. And the whole idea of this entire Operation Sindoor, which you all have all read about, heard about, it was the wishes of the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, that this is an extension and outreach program. Because you read a lot in the social media, some factual things, some exaggerated things, but what really happened in Pahalgam, the truth should be told to the world. So there are 7 groups. Each group have 5 to 7 members of parliament. They have various experts, and we all left on the 23rd and the 24th of May, and the trips, most of us will be back by the 3rd and the 4th of June. So within 10 days, every delegation will go. The outreach program is about 4 to 5 countries. We will try and reach out to as many people as possible, give them facts and figures of what really happened in Pahalgam. And this outreach program is not just to put up a fight against anybody. The fight is not against any individual. It is against terrorism. Because what is the legacy we want to leave our children? Why did you all migrate? Why do we all move? Who leaves their roots? Nobody wants to leave. Ghar koi nahi chhodna chahta. But you have come for a reason generations ahead, and you've made a life here. And we feel so proud that our Indians have come here and contributed to the economy, to good practices here. As a matter of fact, when we met the speaker, precious time that you have taken out to see us, meet us, and greet us. जब सब भारतीय एक छत के नीचे एक साथ हैं, तो ये तो कहना बनता है, भारत माता की जय! भारत माता की जय! मुझसे पहले कहा गया, अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग क्षेत्र के सांसद इस दल में एक साथ आए हैं। हमारे दल, विचारधाराएं, क्षेत्र, भाषाएं सब अलग हो सकती हैं, लेकिन संदेश एक है, और वो संदेश कड़ा और स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। कोई आतंकवादी हमला भारत पर करेगा तो बदले में भारत करारा प्रहार करेगा और बार बार करता रहेगा अगर ऐसा होगा तो। मुझे दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिला। अधिकतर लोग ये कहते थे कि हमने भारतीय फिल्में देखी तो सॉफ्ट पावर की बात करते थे, हमारे एक्टर्स की बात, हमारे गानों की बात, दुनिया के बहुत सारे देशों में। इथियोपिया में आके मुझे जो अपनी एक और सॉफ्ट पावर पर गर्व महसूस हुआ, यहां के पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर से लेकर किसी भी बड़े दल के नेता से मिले हों या सांसद से लेकर किसी व्यापारी तक भी मिले हों, सबने कहा है हमें शिक्षा देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय टीचर्स ने और एजुकेशन सिस्टम ने किया है। ये बहुत बड़ा योगदान है आपका। मेरे पिता प्रोफेसर थे, वो जब मुख्यमंत्री भी बन गए उसके बाद भी लोग उनको प्रोफेसर साहब ही कहते थे, क्योंकि उनको लगता था उनके जीवन को शेप करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा।
आपके हाथों से ना जाने कितने लीडर बन गए। तो आप लीडर्स के भी लीडर्स हैं, गुरु हैं आप। तो आप ये संदेश बहुत आसान तरीके से बहुत स्पष्ट दे सकते हैं कि भारत जो एक विक्टिम है आतंकवाद का, वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म for the last more than 4 decades, lost thousands and thousands of lives in the cross-border terrorism. And if you look at the past, look at the war of 65, 71 and Kargil, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, जहां सीधी सीधी लड़ाई हुई, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, हर बार धूल चटाई है। लेकिन उसको पता सीधे से लड़ नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, वो निहत्थे निर्दोष लोगों पर, इनोसेंट पीपल, उन पर इस तरह से अटैक करके जो टूरिस्ट बन के गए थे, छोटी छोटी बच्चियों के आगे, किसी पत्नी के सामने उसके पति को, बहन के सामने उसके भाई को सिर पे गोलियां मार के मार दिया गया। कोई कसूर नहीं था। और जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने क्लेम किया कि उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, वो पाकिस्तान की लश्कर तैयबा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान को बता भी दिया। 2 वीक्स तक पाकिस्तान ने 14-15 दिन तक कुछ नहीं किया। फिर भारत ने वो किया कि 9 पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को बम धमाकों से मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। अब ये काम तो पाकिस्तान को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वहां तो वही फंडिंग कर रहे हैं, वही ट्रेनिंग कर रहे हैं, वही लॉजिस्टिक, वही हैंडलिंग कर रहे हैं, वही हमारी सीमा के अंदर भेज रहे हैं, वही मरवाने का काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कहां उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ काम करेगा? भारत ने किया। लेकिन बदले में पाकिस्तान आर्मी ने भारत के निर्दोष लोगों पर अटैक कर दिया। जम्मू कश्मीर के रीजन में हमारे लोगों की जानें चली गई। फिर भारतीय सेनाओं ने वापस मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को आखिरकार आना पड़ा, सीज फायर करने के लिए फोन करना पड़ा डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को, DGMO को। सवाल यह खड़ा होता है कि आज दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कैसे करें। जो स्लेइंग टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी मारे गए भारतीय सेना के हमले में, उनको फेयरवेल देने के लिए कौन आया? पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अफसर आए, पुलिस के बड़े बड़े अफसर आए, चुने हुए प्रतिनिधि आए, और तो और पाकिस्तानी झंडे में आतंकवादियों की लाशों को लपेटा गया और फिर दफनाया गया। क्या किसी देश में टेररिस्ट के बॉडीज को नेशनल फ्लैग में लपेटा जाता है क्या? मेरा आपसे सवाल है, लपेटा जाता है क्या? इन एनी कंट्री डू यू सी एनी कंट्री रैपिंग the terrorist bodies in the national flag? Do they? Pakistan did so. पूरी दुनिया ने उनके चेहरे को देखा और यही चेहरा हमें दुनिया को दिखाना है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, सबने माना कि हम 30 साल से 30 ईयर से डर्टी जॉब करते आ रहे हैं। कई सबूत हैं, लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है, अगर आप सीधी लड़ाई हम नहीं चाहते कोई हो, अगर आप टेररिस्ट अटैक्स लगातार करवाते रहोगे तो मुंह तो जवाब मिलता रहेगा। और हमने दुनिया में कह दिया है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम कुछ भी करेंगे, किसी को अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ाने नहीं देंगे। और सब राजनीतिक दलों के जितने मेरे साथी बैठे हैं, सब इसलिए एक आवाज में कह रहे हैं, और यहां पर भी पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर से लेकर डिप्टी लीडर से लेकर जितने लोग मिले, सब ने टेररिस्ट अटैक को कंडेम्ड किया, उसकी निंदा की।